Hello, I am Vaidya Bhavsar and today we are going to start first adhyay, that is Dirghan Jivitiya adhyay of Charak Sanhita Sutrasthan. अथातो दीर्घं जीवितीयम् अध्यायं व्याख्यास्यामः इति हस्माः भगवानात्रयः. Now, from this chapter, as per the NCISM syllabus, it is a very important chapter as this is the introductory and the first chapter of Charak Sanhita. So, from here 1 marker MCQ, 5 marker short answer question as well as 10 marker long answer questions can also be asked. Okay, let's start. मंगलाचरण, जैसे कि मैंने अष्टांग हृदय में आपको ऑलरेडी समझाया था कि बिफोर बिगिनिंग ऑफ एनी ग्रंथ और एनी संहिता मंगलाचरण इज इम्पॉर्टेंट because at the beginning, middle and the end, that is completion of shastra, following Mangalacharan is considered as a good ritual to avoid any obstruction. ठीक है, कोई विघ्न ना आए उसके वजह से सबसे पहले मंगलाचरण करते हैं, जिसमें ओमकार एंड अथ शब्द जो है दे आर वेरी प्रेशियस वर्ड्स. ओमकारश्च अथ शब्दश्च द्वावैतो ब्रह्मणं पुरा कंठभित्वा विनिर्यातो तेन मंगलिका avubho. That is, in this earth, the two precious words first emerging from Om and Atha are the words which are emerged from the kant of Brahma itself, Brahma himself. So even the Brahma Sutra chapter starts with Atha Shabda, like Athato Brahma Jigyasa. ठीक है, तो ये ब्रह्म सूत्र करके एक बहुत ही लिटरेट बुक है. Then one more opinion that Charak Sanhita might took origin before Puranic Kal is this, because it is told that Omkar Shabda and Atha Shabda are used. ठीक है, जिसमें से वैदिक वांग्मय ओमकार शब्द से करते हैं और लौकिक वांग्मय में अथ शब्द से मंगलाचरण या फिर शुरुआत करते हैं. नाउ one question which may be asked is, what are the 8 first श्लोक ऑफ द संहिता कम्प्राइज ऑफ 8 वर्ड्स. व्हाट आर द 8 वर्ड्स? ठीक है, तो वो कौन से वर्ड्स है, तो वो आपको पूछ सकते हैं. तो ये जो 8 वर्ड्स है वो है अथ अत दीर्घम जीवितीय अध्यायम इति वि आख्यास्यामः. ठीक है, ये जो है उसके 8 पद है, इसको क्या बोलेंगे हम? पद. ठीक है, ये 8 चरक संहिता के फर्स्ट श्लोक के पद है जो यूजुअली एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि हाउ मेनी पद आर देयर इन द फर्स्ट श्लोक. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. दीर्घं जीवितीयम का मतलब क्या है वो इधर बताया है कि दीर्घ मीन्स लॉन्ग एंड जीवितीयम मीन्स द लाइफ. So this chapter is all about the longevity quest for the longevity, that is the ways in which we can increase our lifespan, the ways in which we can live a healthy life. Okay, let's go towards the first shloka. Okay, the origin of Ayurveda. Okay, now before this, here Acharya has why Acharya has written Sutrasthan, what are the 4 types of sutra, these all are elaborated, which are not important as per the UG syllabus. Okay, and here this is important of course. Before starting the Charak Sanhita, the Sutrasthan 30 chapters, there are 30 chapters in total in the Sutrasthan. Okay, so how to remember them? So Acharya ने बहुत ही beautifully चतुष्क बनाया है. चतुष्क means the 4 कॉम्बिनेशन ऑफ 4 चैप्टर्स. ठीक है, तो वो सीक्वेंस आपको याद रखनी है. पहला चतुष्क दैट इज फर्स्ट 4 चैप्टर्स, दीर्घं जीवितीय, अपमार्ग तंडुलीय, आरगवदीय एंड षड्विरेचन शतश्रुतीय अध्याय, वो भेषज चतुष्क के अंतर्गत आएंगे. दैट इज द फर्स्ट चतुष्क. देन द सेकेंड चतुष्क इज स्वस्थ चतुष्क. इस कंप्राइजेस ऑफ मात्रा शितियम, तस्य शितियम, न वेग धारणीयम एंड इंद्रियोपक्रमणीयम. दैट इज द चैप्टर नंबर 5, 6, 7 एंड 8. ठीक है, दे कंप्राइजेस ऑफ स्वस्थ चतुष्क. देन द थर्ड चतुष्क इज निर्देश चतुष्क, इन विच खुड्डक चतुष्पाद, महाचतुष्पाद, त्रिशरेषणीयम, वातकलाकलीय अध्याय आर रिटन और इंक्लूडेड. देन द फोर्थ चतुष्क इज द कल्पना चतुष्क, इन विच स्नेह अध्याय, स्वेदन अध्याय, उपकल्पनीय अध्याय, चिकित्सा प्रवृत्ति अध्याय आर एलैबोरेटेड. रोग चतुष्क
in which Kiyanta Shirshiya Adhyay, Trishothiya Adhyay, Ashtodhariya Adhyay and Maharog Adhyay are included. The sixth Chatushka is the Yojana Chatushka, in which Ashtoninditiya, Langhan Bruhaniya, Santarpaniya and Vidishonitiyam Adhyay are included. The seventh and the last Chatushka is the Annapana Chatushka, in which Yajja Purushiya, Atreya Bhadrakapiya, Annapana Vidhi and Vividha Ashita Pitya Adhyay are included. The last two chapters are considered as Sangraha Dvaya. Dvaya means two. So what are the last two chapters? Dasha Prananiya Adhyay and Arthidash Mahamuliyam Adhyay. In this way, all the 30 chapters of Sutrasar are summarized based on Chatushka and 7 Chatushka and 1 Sangraha Dvaya. Okay. So this is a must to just remember all the Chatushka, and easily then you can logically remember, because सबसे पहले क्या है भेषज, ठीक है, कि मेडिसिन के बारे में है, ठीक है, उसके रिलेटेड 4 चैप्टर्स है. फिर नेक्स्ट है वो स्वस्थ चतुष्क है, जो कि हेल्दी बीइंग के लिए होता है, ठीक है, कि क्या क्या करनी चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. फिर है निर्देश चतुष्क, उसमें हमें बताया है कि व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल्स, ठीक है, क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए और उनकी क्या क्वालिटीज, जैसे कि चतुष्पाद वगैरह है, ठीक है, वो सब उसमें है. कल्पना चतुष्क, दैट इज़ द उपक्रम, स्नेहन स्वेदन षड्विध उपक्रम, ठीक है, ये सब चीज़ें आएंगी कल्पना चतुष्क में. देन बेसिक रोग चतुष्क, हाउ मेनी रोग आर देयर, एनलिस्टमेंट ऑफ द रोग आर गिवन इन द रोग चतुष्क. आफ्टर नोइंग द रोग वी कैन what are the important योजना we should understand before going to the treatment. तो उसमें ये अष्टनिंदितीय अध्याय है, जिसमें बताया है कि 8 प्रकार के पुरुष है जिनको हमें ट्रीट नहीं करना चाहिए. फिर लंघन रोहणीय अध्याय, संतर्पणीय अध्याय, विधि शोणितीयम अध्याय है. देन द 7 इज दैट अन्नपान चतुष्क, ठीक है, एंड एट लास्ट संग्रह द्वय है, जिसमें अगेन बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में आचार्य ने डिटेल में बताया है. So let's just move forward with our chapter. दीर्घम जीवितम अन्विच्छन् भारद्वाज उपागमात् इंद्रम उग्रतपा भूत्वा शरण्यम अमरेश्वरम. Here you have to remember that उग्रतपा, ठीक है, उग्रतपा is the synonym for whom? Bharadwaj. He was उग्रतपा. And Amareshwar, yeah, here Amareshwar is the synonym for Indra, ठीक है, this is the synonym for Indra. So Lord Brahma recollected the knowledge of Ayurveda and passed it on to the Daksha Prajapati. This we have already discussed in very much detail in the Ashtanga Hridaya, ठीक है. From Prajapati, the sacred knowledge of Ayurveda was passed on to Ashwino Kumar, ठीक है, who are considered as doctor of Devta, divine souls. From them the Lord Indra learnt Ayurveda. Then Bharadwaj, being the desires of the long life, having known about, approached the Indra and learnt about Ayurveda from the Indra, ठीक है, भरद्वाज ने इंद्र के पास से सीखा. यहाँ तक क्लियर है? ओके, मूविंग ऑन टूवर्ड्स द नेक्स्ट श्लोक. Here the history of Ayurveda is given, which is not very much important. It is important, but for the examination point of view it is not important, so that's why. So here it is told that in the ancient time when disease became obstacles, ठीक है, for तप, उपवास, अध्ययन, ये सब जो है ऋषि लोग करते थे. ब्रह्मचर्य, व्रत और आयुष, ये सब चीज़ें महर्षि लोग करते थे. Maharshi sages wanted to help the people by relieving the disease. उनको relieve करना था disease से. So with this agenda, the sages gathered in the Himvat Parshva. Himvat Parshva पे सब conference हुआ in the hills of Himalayas on the auspicious day to discuss the solution of the problem. The sages gathered. कौन कौन से sages थे? अंगिरा, जमादग्नि, वैशिष्ट, काश्यप, भृगु, अत्रेय, गौतम, सांख्य, पुलस्त्य, नारद, असीत, अगस्त्य, वामदेव, मार्कंडेय, अश्वलयान, परीक्षित, भिक्षु, अत्रेय, ठीक है, भारद्वाज, कपिंजल, विश्वामित्री, अश्मर्थ्य, भार्गव, च्यवन, अभिजीत, गार्ग्य, शांडिल्य, कौंडिल्य, वर्क्षी, देवल, गालव, शकुंतय, भैजवापी, कौशिक, भद्रायण, बड़िश, शरलोम, काप्य, कात्यायन, कांकायन, ठीक है, कैकशीय,
धौम्य, मारीच्य, मरीच, काश्यप, शर्करश, हिरण्याक्ष, लोकाक्ष, पैंगी, शौनक, शौकुनीय, मैत्रेयी, मैमत्ययनी, वैखनासन एंड वलखिल्य। और बाकी बहुत सारे आचार्य भी थे, ये सब मेन जो आचार्य थे उनके नाम लिए हैं। तो ये सब हिमवत पार्श्व, दैट इज इन दी foothills of Himalayas, gathered for the conference and discussed the problem. Then आरोग्य मूलम, चतुर्वर्ग कारण फॉर आरोग्य। तो ये लोग क्यों हुए थे? तो वहाँ पे उनको क्या करना था? रोगों के धर्म आदि प्राप्ति में बाधकत्व, मतलब क्या क्या चीज़ें हैं जो बाधा करती हैं। तो उसमें बताया है कि धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलम उत्तमम। धर्म अर्थ काम मोक्ष ये सारे जो है वो आरोग्य के उत्तम मूल है, ठीक है। दे आर दी बेसिक रूट्स फॉर आरोग्य, दैट इज हेल्दी लाइफ। रोगोत्सर्य अपहर्तर श्रेयसो जीवितस्य च प्रादुर्भूतो मनुष्याणाम अंतरायो महानयन। कः स्यात् येषां शमोपाय इति युक्ता ध्यानम् अस्थिताः अथे ते शरणं शक्रम ददृशुर ध्यानचक्षुषा। ठीक है, व्हाट इट इज टोल्ड दैट हेल्थ इज द मूल फॉर आरोग्य, possess that is the healthy state of good health indicate that process of healthy condition and other absence of the disease. So what are they? Dharma, which is the virtuousness, artha, that is wealth, kam is the desire, fulfillment, and moksha is the salvation. Diseases destroys the health, shreyas, that is welfare, and jivita, life. Manifested diseases destroys the health, shreyas, and jivit. ठीक है, manifested diseases are considered as great obstacles in the way of human life. With this point of view, with the help of their dhyana chakshu, ठीक है, important point is dhyana chakshu. Here they found a savior in the Lord Indra and got an assurance that Lord Indra, gods, would explain the proper way to counteracting the disease. Why? Now here in the commentary, Acharya Chakrapani has very beautifully said that once you gain the knowledge, it becomes your responsibility, your sole responsibility to pass on that divine knowledge. You cannot be selfish and keep that knowledge with you. Okay, so here the ऋषि मुनि जो भी लोग थे, जो भी साइंटिस्ट थे, जिनको हम साइंटिस्ट्स समझ सकते हैं, ऋषि वर्ड का लिटरल मीनिंग वी कैन गेट इन अमरकोश डिक्शनरी एज अ साइंटिस्ट. सो व्हेन दे गैदर्ड फॉर अ कॉन्फ्रेंस, बेसिकली दे फाउंड आउट दैट इंद्र इज हैविंग दैट ऋण. ओके, उसके पास उनके सिर पे एक ऋण है, ठीक है, ऑफ व्हाट? ऑफ नॉलेज, द नॉलेज ऑफ आयुर्वेदा विच ही हैड टेकन फ्रॉम हुम? अश्विनो कुमार. ठीक है, अश्विनो कुमार से इंद्र ने नॉलेज लिया हुआ था ऑफ आयुर्वेद. सो बट ही वॉज नॉट फाइंडिंग एनी डिसाइपल, दैट इज़ एनी शिष्य जिसको वो नॉलेज पास ऑन कर सके. किसी के पास इतनी कैपेसिटी नहीं थी और ना ही इंद्र के पास इतना टाइम था कि वो जाके पूरा का पूरा आयुर्वेद जैसे कि ब्रह्मा ने बताया था वैसे का वैसे ट्रांसफ़र कर सके. बिकॉज नो वन वॉज दैट मच having that much patience and that level of devotion to gain the knowledge. Okay, so they got an assurance that Lord of Gods, Lord Indra, will definitely give the knowledge, and they view by this the ऋषि लोग जो भी थे उन लोगों ने अपने ध्यान चक्षु से पता लगाया. ठीक है, फिर बताते हैं यहाँ पे इम्पोर्टेंस. Sahasraksha is the synonym of Indra. Shachipatim, Shachi is the wife of Indra, one of the wife of Indra. उनके पति, that is Indra. So Shachipati is again the synonym of the Indra. This I am emphasizing on the synonyms of Lord Indra because they may be asked in the MCQs that which among the following is the synonym for Indra, or what is the synonym for Indra, and then 4 options will be given. So yeah. Then again one more, Balahantaram is the synonym for the Indra, and Shatakritu. ठीक है, Shatakritu is again the synonym for Indra. इतने इंद्र के पर्याय इस श्लोक में दिए गए हैं. So let's just move
that Acharya had decided to send Maharshi Bharadwaj to the Lord Indra to learn the divine science of Ayurveda from him. Accordingly, Acharya Bharadwaj went to Indra aboard and saw Indra. इंद्र भवन में गए और उन्होंने इंद्र को देखा. द डिस्ट्रॉयर ऑफ द बल, कौन सा? बलहंतार, सिटिंग इन द मिडस्ट ऑफ द सुरासी, दैट इज Sura, that is the god, and sages, Sura and Rishi, Sura Rishi, glittering like fire. After going there, he praised and blessed the Sureshwar, Lord of gods, humbly conveys the message of Lord Indra and told, the diseases are terrifying all the living beings and have manifested themselves. Tell me the method to subside them, O Lord of gods. Then the Lord Indra provided the knowledge of Ayurveda to Bharadwaj in brief, considering the depth of his intellect. Okay? So in this way, Acharya Bharadwaj got the knowledge of Ayurveda. Now, most important point, Trisutra Ayurveda, Hetulinga Aushadha Jnanam, Swastha Atura Parayanam, Trisutram Shashvatam Punyam, Bubudheyam Pitamaha. ठीक है, यहाँ पे बताया है दैट इंद्र एक्सपाउंडेड द शाश्वत एंड पुण्यम कंसिस्टिंग ऑफ 3 सूत्र. कौन से 3 सूत्र है? हेतु, दैट इज द निदान, लिंग, दैट इज द सिम्टमोलॉजी, एंड औषध ज्ञान, विच इज द नॉलेज ऑफ थेराप्यूटिक्स, ट्रीटमेंट्स एंड मेडिसिन फॉर स्वस्थ, एंड आतुर, दैट इज द पेशेंट, विच हैड अर्लियर बीन अंडरस्टूड बाय पितामह, दैट इज लॉर्ड ब्रह्मा. ठीक है, बुबुदे, एंड ट्रांसफर दिस 3 सूत्र शाश्वत आयुर्वेद ज्ञान. Next are the 3 skanda of Ayurveda. What are the 3 skanda of Ayurveda? So here it is told, so anantapara 3 skandam Ayurvedam mahamati yatha vadachirat sarvam bubudhe tanmana munihi tena ayurmitam lebhe bharadvajam sukhan vitaram ऋषिभ्यो अनधिकम तच्च शशंसाना वशेषयान. Bharadwaj, the sage of the great wisdom and devotion, very quickly grasped the knowledge of Ayurveda consisting of 3 skanda, but of Anantapara, that is immeasurable, extent, endless. ठीक है, उन्होंने 3 ब्रांचेस, 3 स्कंद के बारे में उन्होंने लिया. 3 ब्रांचेस कौन सी है? हेतु, लिंग एंड औषध. इन्हें 3 सूत्र या फिर 3 स्कंद भी बोलेंगे. ठीक है, तो हेतु, लिंग, औषध के बारे में उन्होंने लिया, which is not limited but endless. So by this Bharadwaj enjoyed happy and infinitely long life and conveyed this in its entirely to other ऋषि गण. ठीक है, जैसे उन्होंने लिया था वैसे के वैसे ही उन्होंने ऋषियों को दिया, अपने वर्ड्स न अधिक, अपने वर्ड्स ऐड किए बिना, ना ही विशेषण, दैट इज़ ना ही किसी वर्ड को क्या बोलता है, माइनस, एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन किए बिना, जैसे कि जैसे उनको इंद्र से मिला था वैसे के वैसे उन्होंने सारे ऋषि को पास ऑन किया है. ठीक है, नेक्स्ट इट इज टोल्ड कि फ्रॉम भारद्वाज द सेजेस रिसीव द नॉलेज ऑफ आयुर्वेदा एज मीन्स एज वेल बीइंग एंड द लाइफ लॉन्ग लाइफ. दीज सेजेस विद द ज्ञान चक्षु, पहले क्या देखा था हमने? ध्यान चक्षु. अब क्या आ रहा है? ज्ञान चक्षु. तो यहाँ पे देयर इंट्यूटिव पावर्स विजुअलाइज्ड द सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म एंड समवाय. सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म एंड समवाय आर दी व्हाट? बेसिक 6 पदार्थ, 6 पदार्थ ऑफ आयुर्वेद. ठीक है, इधर है महर्षयस्ते ददृशु यथार्थ विज्ञान चक्षुषा सामान्यं च विशेषं च गुणान् द्रव्याणि कर्म च समवायं च तत्त्वज्ञानं तंत्र उक्तं विधिमा स्थितः लेभेरे परम शर्मं जीवितं च अप्यनित्वरम्. ठीक है, यहाँ पे अत्रे पुनर्वसु बीइंग द मैत्री पर, दैट इज फ्रेंडली टू ऑल, एंड सर्वभूत अनुकंप्य, दैट इज आउट ऑफ द सिंपथी. ठीक है, ऑल उनको सिंपथी थी सबके लिविंग बींग्स के प्रति, एम्पथी थी. सो टॉट दिस सेक्रेड आयुर्वेदा टू हिज 6 disciples. Who are the 6 disciples?
important, remember Agnivesh, Bhel, Jatukarna, Parashar, Harit, Ksharapani. 6 disciples of Acharya Atreya. ठीक है. Next it is told extraordinary intellect of Agnivesh, not special instruction by the sage. ठीक है, ऐसा नहीं है कि अग्निवेश को अलग से पढ़ाया है. ठीक है, जैसे ही इसके 6 शिष्यों को एक साथ ही पढ़ाया है आचार्य ने, बट एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटेलेक्ट वॉज देयर इन द अग्निवेश. ठीक है, इट लेड अग्निवेश टू एक्सपाउंड हिज वर्क फर्स्ट. Later, Bhel and other also expounded their respective works by presented them to Atreya, accompanied by a group of sages. After hearing their work, the sages became greatly delighted and highly appreciated the work of the 6 Maharshi, who were desirous of the well-being of all the living beings. सबके मन में एम्पैथी तो थी, लेकिन इंटेलेक्ट किसका था? अग्निवेश का. All the Maharshis admired at a time loudly Sadhu Bhuteshu Anuroksha. Brilliant is his sympathy for living beings. This sacred word of Maharshi was heaven by divine sages and gods who were delighted. The Snikta Gambhira Nirghosha, Aho Sadhu, excellent produced by excited beings, echoed in all the 3 worlds. ठीक है, इहलोक, परलोक और दूसरे जो भी लोक है, 3 जो लोक है उसमें इनका निर्घोष हुआ, उनका वाहवाही हुई, उनको ब्लेस किया गया. The atmosphere was filled with pleasant good wind and all directions were illuminated by divine light. There was divine showers of flowers and water dropped down, and the gods of wisdom, that is the Buddhi, Siddhi, Smriti, Medha, Dhriti, Kirti, Kshama and Daya, entered to the Agnivesh and other 5 disciples. These works are accepted by the great sages who were established on the earth for the good of all the creatures. So in this way, Ayurveda came to the earth, and Agnivesh was the brilliant disciple, first and very fast drafted the Charak Samhita, that is Agnivesh Tantra. ठीक है. Now, moving on. What is the definition of Ayurveda? Most important shlok, remember this, by heart this. Hita hitam sukham dukham ayustasya hita hitam manam cha tatcha yatrotkam ayurvedah sa uchyate. Ayurveda is the science of life which explains about hit ayu, that is beneficial life, ahit ayu, that is non-beneficial life, sukh ayu, that is the happy state and mind, ahit ayu, that is unhappy state of health and mind, and also explains what is conductive and non-conductive for life and measurement of the life. ठीक है, हित अहित मान, that is the measurement of the life. तच्च यत्र उक्तम, uktam means spoken, it is called, hence it is called Ayurveda sa uchyate. Now, what is the definition of ayu? Ayu, that is the life. What is its definition? Most important, by heart the shlok. Sharir indriya sattva atma sanyogo dhari jivitam नित्यगश्च अनुबंधश्च आयुः उच्यते. पर्याये आयुः उच्यते. ठीक है, ये सारे पर्याय है किसके? आयु के. टर्म आयु स्टैंड फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ शरीर, इंद्रिय, सत्व एंड आत्मा. This means that when the body is intact with the sense organs, mind and soul, then one will have life. आयु तभी होगी जब शरीर, इंद्रिय, सत्व एंड आत्मा, ये 4 चीज़ें कंबाइन होंगी. नाउ, व्हाट आर द सिनोनिम्स ऑफ आयु? सो फर्स्ट इज धारी, दैट इज़ द वन दैट प्रिवेंट्स द बॉडी फ्रॉम द डिके. धारी मतलब जो भी क्या बोलता है, जो भी शरीर को सड़ने नहीं देता. ठीक है, शरीर को जो धारण करता है, धारी, इसलिए आयु को बोलता है धारी. फिर है जीवित, which supports the life activities. Okay, it withholds the प्राण. ठीक है, इसलिए उसको क्या बोलता है? जीवन, जीवित. फिर नित्यग, which keeps the soul, mind and sense intact with the body all the time without discontinuation. नित्यग is something which is infinite. ठीक है, प्रतिदिन आयु जीती रहती है, तो वो हुई नित्यग, continuous. Then अनुबंध. अनुबंध means
which is outcome of association of शरीर आदि factors resulting in conductive and non-conductive life. ठीक है, आयु का संबंध पर एंड अपर शरीर से या प्राण से सदा लगा रहता है, उसे हम क्या बोलेंगे? अनुबंध. ठीक है, remember these 4 synonyms. These are very much important as well as their meanings are also important. Moving on to words. See here it is written. Dhari means dharayati shariram putitam गंतु न ददायति धारी. जीवित मीन्स जीवयति प्राणान धारयति इति जीवम, प्राण को जो धारण करती है वो. नित्यम शरीरस्य क्षीणितत्वेन गच्छति इति नित्यक. ठीक है, क्षीण शरीर क्षीण होता रहता है पर लाइफ जो है वो कंटिन्यू ही रहती है. ठीक है, उसको बोलता है कंटिन्यू, द बॉडी इज गोइंग टू द डिस्ट्रक्शन, उसको नित्यक बोलेंगे. और अनुबंध दैट इज अनुबंध्यात्य आयु पर अपर शरीर आदि संयोग रूपा तैत्य अनुबंध. ठीक है, विच कंटेन्स कॉम्बिनेशन विथ अदर बॉडीज दैट इज इन द फ्यूचर बर्ड्स. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अनुबंध. नाउ यहाँ पे आयुर्वेद की श्रेष्ठता बताई है. तस्य आयुषः पुण्यतमो वेदो वेद विदां मतः वक्ष्यते यन्मनुष्याणां लोके रय उभयतो हितम्. As it is beneficial to mankind in the respect of both the worlds, the Ved, that is the science, is opined by Vedvidam, the knower of the science, as Punyatam, most auspicious, owing to its being beneficial to Manushya, that is human, and Loka, that is the entire creation. Okay. Next is an important concept of Samanya Vishesha Siddhanta. Important shlok, remember. Sarvada sarvabhavanam samanyam vrittikaranam rasa hetu visheshascha pravrittiryu ubhayasya tu. क्या बताया है? सर्वदा मीन्स त्रिकाल नित्य. कौन से है 3 काल? पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. सर्वभावानाम दैट इज भवन्ति सत्ताम, ऑलवेज एग्जिस्टेड. सामान्य दैट इज सामान्यस्य भावः सामान्य, दैट इज द सिमिलैरिटीज. वृद्धि कारणम मीन्स इंक्रीजिंग, द रीजन फॉर इंक्रीज. प्रवृत्तिर उभयस्य तु दैट इज उभय, सामान्य एंड विशेष. ह्रास हेतु विशेषस्य. ह्रास मीन्स टू डिक्रीज, हेतु मीन्स द कॉज फॉर विशेष. ठीक है, विशेष जो है उसके कारण जो होगा उसे क्या बोलेंगे? डिक्रीज, दैट इज ह्रास. और वृद्धि वो किससे होगी? सामान्य से. सामान्य, सामान्य इज वृद्धि कारणम एंड ह्रास इज द विशेष हेतु. ठीक है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट. एंड प्रवृत्ति इज द कार्य और ट्रीटमेंट. और ये सब किसके लिए करना है हमें? आरोग्य अर्थ भिषज प्रवृत्ति. टू ऑब्टेन द हेल्दी स्टेट one should initiate with the medicine. That is, for example, if we want to manage the vriddhi of dosh dhatu and mal, we have to use the medicine which is having opposite quality, that is vishesha, vishesh quality of that dosh dhatu and mal, in order to decrease the increased dosh dhatu and mal. Similarly, if some dosh is increased, for example, vata vritti has been occurred in the body, then the drugs which will be used to decrease the vayu will be having opposite qualities as that of the vayu dosh. ठीक है, तो यहाँ पे सामान्य और वृद्धि का जो कंसेप्ट है वेरी मच इम्पॉर्टेंट, दैट इज एक्सप्लेन्ड. ठीक है, ये द्रव्य सामान्य, गुण सामान्य और कर्म सामान्य, 3 टाइप्स के सामान्य होता है. ठीक है, कौन से? द्रव्य, गुण एंड कर्म सामान्य. ठीक है, कोई 2 चीज़ द्रव्यात्मक रूप से सेम हो सकती है, गुणात्मक रूप से सेम हो सकती है, या फिर कर्मात्मक रूप से, मतलब कि उनके गुण वगैरह तो डिफरेंट होंगे बट कर्म जो है वो सेम कर रहा है, तो इसलिए वो कर्म सामान्य हम बोलेंगे. ठीक है, सो that is the basic principle and concept which you have to remember. See here it is given,
सामान्य गुणे अभ्यासो ही धातुनाम अभिवर्धनम अभिवृद्धि कारणम, जो हमने देखा कि धातु के वर्धन और क्षय में हम इसका यूज़ करते हैं सामान्य का। फिर द्रव्य सामान्य, सिमिलर द्रव्य विल इंक्रीज द शरीर, जैसे कि मांस जो है वो मांस धातु को बढ़ाएगा। रक्त जो है, जैसे कि हमें अजा का मतलब कि गोट का ब्लड या पीने को बोला है, इफ़ देयर इज़ डिप्लीशन ऑफ रक्त धातु, ठीक है, उसकी बस्ती देने के लिए बोला है, सॉरी। सो दैट रक्त विल इंक्रीज रक्त धातु, ठीक है। ये हो गया सामान्य से सामान्य की वृद्धि, सामान्य द्रव्य से वृद्धि। न ही मांसम समम किंचित अन्य देह बृहत्, there is no other equivalent object for mass to increase the mass, and जीव that is रक्त can be corrected administering the रक्त। The second is गुण सामान्य, similar quality increases the द्रव्य, ठीक है। सिमिलर क्वालिटी, सिमिलर गुण के जो है वो द्रव्य को बढ़ाएंगे, जैसे कि इंक्रीज ऑफ क्षीर एंड घृत विल इंक्रीज शुक्र धातु। क्यों? क्योंकि उनके गुण सेम है, जो कि है मधुर रस, स्निग्ध, शीत गुण, ठीक है, वो सारे शुक्र को वर्धन करेंगे, क्योंकि शुक्र के भी कौन से गुण हैं? मधुर रस है, स्निग्ध शीत गुण है, ठीक है। एंड ऑल्सो कफ वर्धक भी हैं होंगे, बिकॉज कफ के भी स्निग्ध, शीत और मधुर गुण हैं। एंड द थर्ड वन इज द कर्म सामान्य, सिमिलर कर्म इंक्रीजेस द सेम क्वालिटी इन द शरीर। एग्जाम्पल, दिवातुष इंक्रीजेस बाय रनिंग वॉकिंग कंटिन्यूसली, क्योंकि इससे कौन सा गुण बढ़ रहा है? क्योंकि इसमें कौन सा गुण है? चल का, ठीक है। एंड कफ दोष विल इंक्रीज बाय द डे स्लिप, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे क्या है? स्थिरता, स्थिरता जो है वो उसका कर्म है, चल जो है वो उसका कर्म है। सिटिंग इन द पोस्चर कंटिन्यूसली विल इंक्रीज कफ दोष अगेन, ठीक है। ये हो गए सामान्य के टाइप्स अकॉर्डिंग टू दिस, बट फॉर द अनदर क्लासिफिकेशन इज गिवन दैट अत्यंत सामान्य, मध्य सामान्य, एकदेश सामान्य। तो उसमें बताया है कि अम्लक इज हैविंग अम्ल रस प्रधानता एंड इट शुड इंक्रीज पित्त, बट डज द पित्त शामक, डज पित्त शमन, ठीक है, अम्ल की जो है वो अम्ल रस होने के कारण से पित्त को बढ़ानी चाहिए। सामान्य गुण में तो हमने यही पढ़ा, बट वो क्या करती है? पित्त का शमन करती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उसका जो है वो शीत वीर्य है और पित्त जो है वो उष्ण वीर्य का है, तो ये क्या हो गए? ऑपोजिट हो गए। तो यहाँ पे कौन सा रखेगा? ह्रास हेतु विशेषश्च, ठीक है। तो इसलिए आगे विशेष के भी टाइप्स बताया, जैसे सामान्य के टाइप देखे उसी प्रकार विशेष के है, द्रव्य विशेष, गुण विशेष और कर्म विशेष। तो द्रव्य विशेष में है यव मास धातु, बाय यूजिंग द यव मास धातु रिडक्शन टेक्स प्लेस, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑफ द मास धातु, क्योंकि उसमें क्या है? द्रव्य डिफरेंस है। यव जो है वो मास धातु के एकदम ऑपोजिट है। यूज ऑफ तेजो गुण युक्त द्रव्य क्षार प्रयोग डिक्रीजेस द कफ दोष। क्यों? क्योंकि वो गुण द्रव्य अपोजिट ही है, पूरा कफ से पूरा अपोजिट है कफ, क्षार। फिर गुण विशेष, तैल हैविंग प्रॉपर्टीज लाइक स्निग्ध गुरु उष्ण विच इज अपोजिट टू द वात दोष, प्रॉपर्टीज लाइक रुक्ष लघु शीत लीड्स टू शमन ऑफ द वायु दोष, ठीक है। अंडरस्टूड? वेरी मच इजी एग्जाम्पल। एंड देन कर्म विशेष, तो वायु चल गुण प्रधान है, तो एक जगह पे बैठने से या फिर एक जगह पर सोने से, स्लीपिंग एंड सिटिंग इन वन प्लेस विल डिक्रीज दी वायु, ठीक है। ये हो गया कर्म विशेष। सो दिस कुड बी आस्क्ड इन डिटेल 5 marker question, that's why I have emphasized even in the tika, otherwise I would not have gone into the tika. Okay, now moving on towards the next श्लोक। सामान्यम एकत्वकरम विशेषस्तु पृथकत्वकृत तुल्य अर्थहिता हि सामान्यम विशेषस्तु विपर्ययः। हियर अगेन दिस इज इम्पॉर्टेंट श्लोक, गिव अटेंशन। सामान्य दैट इज द जनरलिटी, इट इज़ अ कॉज फॉर वृद्धि, ठीक है, जो हमने देखा। एकत्वकरम दैट इज यूनिफिकेशन एंड तुल्य अर्थता, ठीक है। सामान्यम एकत्वकरम, तुल्य अर्थता ही सामान्यम, ठीक है, और सामान्यम एकत्वकरम, वृद्धि का जो है वो हमने ऊपर देखा। एग्जाम्पल क्या है? कफ दोष स्निग्ध गुण, इफ वी टेक ऑयली फूड कफ दोष इन द बॉडी विल इंक्रीज, ठीक है।
और विशेष जो है उसमें इसके लिए बताया है विशेषस्तु पृथकत्वकृत। ठीक है, पहले हमने देखा रास हेतु विशेषश्च ऑफ ऑल द थिंग्स दैट इज पृथकत्वकृत, डिफ्रेंसिएशन के लिए कार्य करता है विशेष, और विशेषस्तु विपर्ययः। ठीक है, इट इज द कॉज फॉर डिसिमिलैरिटी, द कॉमन फीचर्स एंड कैरेक्टर्स लीड टू ग्रोथ। क्या है एग्जाम्पल? द ड्राइनेस, जो कि कफ से ऑपोजिट का दोष का गुण है। इफ़ वी ईट फूड हैविंग ड्राइनेस, रुक्ष गुण लेंगे तो वो कफ दोष को कम करेगा, इट विल डिक्रीज द कफ दोष। ठीक है, वृद्धि तुल्य अर्थता, दैट इज द वन ऑफ द फीचर ऑफ सामान्य बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मास धातु इंक्रीजेस, नॉट ओनली एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मास धातु इंक्रीज, अदर वृष्य द्रव्य लाइक कपिकचु शतावरी मुस्ली मास धातु ऑल्सो इंक्रीजेस। Okay, tulya arthata means similar concept is also available for other drugs or dravya as well. Similarly, rakta dhatu is increased by rakta is also tulya gun dravya, because other dravya like loha bhasma and manjishta will also leads to increase of rakta dhatu. ठीक है, now हाँ, ये हमने देखा वृद्धि का देख लिया, तुल्यार्थता देख लिया। अब एकत्व, एकत्व क्या है? तो दैट इज समानता या फिर एकत्व वृद्धिकरम, उसमें है एकत्व इज क्लैरिफाइड बाय दृष्टांत एग्जाम्पल ऑफ घट, दैट इज अ पॉट विच इज हैविंग घटत्व इज अ कॉमन इन ऑल द घट। ठीक है, कि वो जो शेप है दैट इज वेरी मच कॉमन इन ऑल द पॉट्स। इन द यव राशि दैट इज द हीप ऑफ द ग्रेन, if we add still more yav, it is impossible to separate because of the similarities of weight, but the quantity will get increased. ठीक है, एक पूरा हीप है, पूरा जो गेहूँ का एक पूरा ढेर लगा हुआ है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब उसमें हमने एक और गेहूँ डाल दिया, तो हम सेपरेट नहीं कर पाएंगे कि कौन सा गेहूँ हमने ऐड किया पूरे हीप में से, बिकॉज सारे गेहूँ तो एक जैसे दिख रहे हैं। सो यहाँ पे यव दिया है, नॉट गोधूम बट यव। सो we could not differentiate between in what exactly which yav we had added, but however जो हीप है वो तो एक ग्रेन से बढ़ गया ना, तो वो क्या हो गया? एकत्व हो गया, लेकिन वृद्धि कर भी है। अब उसमें हमें टाइप्स है सामान्य के, अगेन उभय वृत्ति सामान्य और एक वृत्ति सामान्य। ठीक है, उभय वृत्ति सामान्य में क्या है कि मास धातु हर एक तरीके से मास धातु को बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, लेकिन एक वृत्ति सामान्य है घृत जो है वो जठराग्नि को इंक्रीज करता है। अब यहाँ पे ना ही जठराग्नि का गुण और घृत का गुण सिमिलर है, ना ही इन दोनों के प्रॉपर्टीज सिमिलर है, दैट इज कर्म द्रव्यात्मक से भी सामान्य नहीं है, कर्मात्मक से भी सामान्य नहीं है, ना ही गुणात्मक से सामान्य है, लेकिन फिर भी घृत जो है वो जठराग्नि को प्रदीप्त करता है, दैट इज द फैक्ट। तो ये क्या होगी? एक वृत्ति सामान्य। ठीक है, फिर हम देखेंगे त्रिदंड। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज त्रिदंड। सत्व आत्म शरीरम च त्रयमेतत् त्रिदंडवत् लोकस्तिष्ठति संयोगात् तत्र सर्वं प्रतिष्ठितं स पुमांश्च चैतेनं तच्च अधिकरणं स्मृतं वेदस्यास्य तदर्थं हि वेदोऽयं संप्रकाशितः। ठीक है, हियर इट इज टोल्ड दैट सत्व, आत्मा एंड शरीर आर द थ्री पिलर्स, ट्राइपॉड्स ऑफ लाइफ। ठीक है, ये लाइफ है, वो किस पे टिकी हुई है? सत्व, आत्मा एंड शरीर। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? त्रिदंड। ठीक है, दीज आर द थ्री पिलर्स। सत्व, आत्मा एंड बुद्धि, सत्व, आत्मा एंड शरीर आर द थ्री tripods of the life. The whole universe depends on their combination. They constitute the basis of each and every substance. ठीक है, the combination of these three is called पुरुष। What is पुरुष? पुमांस चैतेन। कौन से पुरुष? किसको पुरुष बोलेंगे? जो तीनों सत्व, आत्मा, शरीर कॉम्बिनेशन से बना है उसे हम पुरुष बोलेंगे। He is the अधिकरण of the वेद चिकित्सा, and to increase the health status of him, वेद is explained। ठीक है, वेद का अधिकरण सिर्फ और सिर्फ पुरुष के लिए है, और इस वेद का जो वेद में जो चिकित्सा है वो भी उसकी हेल्थ बढ़ाने के लिए एक्सप्लेन की गई है।
Okay, so from Dravya Sangrah we will continue in the second part. So that's all for the first part of the first chapter of Dirganjiviti Adhyay. Thank you. This was Vaidik Kruti Bhavsar. Thank you all.